इवनिंग। कहां तक डिस्कस कर लिया था बेटा हम लोगों ने? कहां तक डिस्कस कर चुके हैं, बोलो यार। साउंड इज ऑडिबल और नॉट? हाँ सर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइंस। हाइब्रिडाइजेशन बता दिया था। यार कभी कभी बहुत इरिटेट करते हो तुम लोग। श्वेता, हाइब्रिडाइजेशन बता दिया बेटा? नहीं सर, शायद मैंने तो नोट्स में देखा, आपने नहीं। आपने लास्ट एक एलाइल कार्बोकेटाइन और विनाइल कार्बोकेटाइन लिखवाया था। ओके उसके बाद ओके ओके ओके। नाउ गिव द हेडिंग, दैट इज characteristics of carbocation. Now look here. First characteristic H, C, H, H and carbocation. Now tell me one thing, how many electrons are present in outermost shell of carbon atom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number of electrons in valence shell are 6. Now tell me one thing, please, active on. This is electron efficient species or deficient species? Deficient. Electron deficient species. अगर ये डेफिशिएंट स्पीशीज है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। मीनिंग इज दैट जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। सो डियर, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। ऑन प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, एंड ऑन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज विल बी चार्ज of positive type. It is clear? yes sir. Okay. Now, second characteristic is about hybridization. Now look here. 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. On 3 sigma, 1s plus 2p, so hybridization will be type of sp2. Now listen students, in case of sp2 hybridization, structure is trigonal, triangular planar. ट्राइगोनल प्लेनर। इसका बहुत रोल है मैकेनिज्म के अंदर रिएक्शन में, तो ढंग से याद कर लेना। sp2 पे ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो स्ट्रक्चर कैसी होगी? सी, ये वो ऑर्बिटल्स हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे जो। अब वैकेंट ऑर्बिटल ये है विद पॉजिटिव चार्ज। 1, 2, 3, 3 sigma orbitals will be present in a single plane. ये एक सिंगल प्लेन में होंगे और ये इनके परपेंडिकुलर होगा। ये इस प्लेन में है तो ये इस प्लेन में होगा। इट इज क्लियर? लास्ट लेक्चर पे भी एक्सप्लेन किया था। yes sir. अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आने जा रहा है जो बहुत 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 यूज होने वाला है। दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। Stability of carbocation. I am giving you a few examples. CH3, C,
CH3 plus. Second is CH3 CH3 plus. Third one is CH3 CH2 plus, and the last one is CH3 plus. My dear students, now we are going to be check the stability of followings. So for checking out of stability, we have three concepts. First concept of resonance, second hyperconjugation, third is inductive effect. Most stable is resonance, Resonance. then hyperconjugation, then inductive effect. So it is clear resonance will not be occur here. यहाँ resonance तो होगा नहीं. Second, we are checking hyperconjugation, and for hyperconjugation we always check the number of hydrogens or no. Yes, sir. Yes, sir. अब स्पीड हाई रहेगी, स्पीड लो नहीं होगी, तो आपको मेरी स्पीड को मैच करना है. इसके पास वाला कार्बन अल्फा 33639 9 अल्फा हाइड्रोजन 336 अल्फा हाइड्रोजन 3 and 0 अल्फा हाइड्रोजन 9 6 3 और 0. Which one have maximum alpha hydrogen? 3 degree carbonation and least 1 degree. So stability order will be like this. Yes or no? हाँ सर. हाँ सर. भाई मैंने क्या बताया है? Number of alpha hydrogen is directly proportional to the stability. So it has maximum alpha hydrogen, so it will be maximum stable. Now one more thing, we can also discuss about the inductive effect here. CH3 show this type of effect plus I effect. It will donate. Here two methyl group will be donate. Here only single methyl group will donate. अब ये बताओ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से गेन कर रहा है, यहाँ से गेन कर रहा है, यहाँ से गेन कर रहा है. पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, यहाँ भी पॉजिटिव डिक्रीज होगा, यहाँ भी पॉजिटिव डिक्रीज होगा. मैक्सिमम कहाँ डिक्रीज होगा? फर्स्ट में, उसके बाद सेकंड में, और उसके बाद थर्ड में. अब ये बताओ चार्ज की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? इंक्रीज होता है. So here it is clear. 3 degree is greater than 2 degree is greater than 1 degree. This is your first biggest concept. Second question. Now look here. Which one will be more stable? Sir, अब first यहाँ one. अल्फा हाइड्रोजन बोलो मत, अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है नहीं किसी में, और इंडक्टिव इफेक्ट भी नहीं करना, कॉन्जुगेशन. सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट. देखो यहाँ मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑब्टेन होंगे, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. भाई 3 बेंजीन रिंग अटैच है, यहाँ 2 बेंजीन रिंग, यहाँ 1 बेंजीन रिंग. More resonance, less resonance, then less stable. More resonance, then more stable. So it is triphenyl. इनको फिनाइल ग्रुप बोलते हैं. ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन, डाइफिनाइल कार्बोकैटायन और फिनाइल कार्बोकैटायन. So this one is more stable. इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ये ग्रुप कौन सा है? C6H5. कितने हैं? 3 हैं. इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? C6H5. कितने हैं? 2 हैं.
और यहाँ कितना है सिंगल। सर इस सर बोलो बोलो जल्दी बोलो। इसको हम लिख सकते हैं PH3C। हाँ हाँ वो भी लिख सकते हो। पीएच फिनाइलिन है, पीएच फिनाइलिन है और पीएच फिनाइलिन है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता, चलो कोई बात नहीं, इसमें लिख दिया। यहां तक क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। जिसने प्रीवियस लेक्चर सारे अटेंड किए हैं उसके लिए तो केमिस्ट्री हलवा होने वाली है। सर खा जाएंगे अगर हलवा हो गया तो। सर हम वैसे भी बहुत ज्यादा भूखे हैं सर, आप तो हमें जानते हो ना सर। ये क्या ना क्वेश्चन, ये नहीं। चलो माइंड लगाओ और मुझे ये बताओ इन दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा। बताओ बेटा कौन सा स्टेबल होगा। सर सेकंड वन। सेकंड। देखो नो कॉन्जुगेशन, यहां कॉन्जुगेशन नहीं, लेकिन यहां क्या प्रेजेंट है आपका कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 3 है। 3 यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6। 6। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन भले ही ए में ज्यादा है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? रेजोनेंस। रेजोनेंस। सुन लेना, यहां रेजोनेंस क्या है ज्यादा इसके कंपेयर में, तो ये स्टेबल इससे ज्यादा, ये स्ट्रक्चर इससे ज्यादा स्टेबल है। इट इज क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्लास 12 में बहुत काम आने वाला है। डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है या नहीं है? यस सर। हाँ सर है। यहां कॉन्जुगेशन है क्या कोई? नो सर। ना। नाइस। पहला वाला। इसका बताओ तो जाने। कितने डिग्री है ये? 2 डिग्री। 2 डिग्री। ये कितना है? 1 डिग्री। 1 डिग्री। बट रेजोनेंस स्टेबलाइज डबल सिंगल पॉजिटिव। यहां क्या होगा देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये इसको इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करेंगे प्लस आई इफेक्ट भी। बट यहां रेजोनेंस प्रेजेंट है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो ये बताओ क्या मैंने लास्ट लेक्चर पर आपको इसका एक स्पेसिफिक नेम बताया या नहीं बताया? एनाइलिक कार्बोकैटायन, यस और नो? यस सर। यस। तो एनाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहां तक नोट करो फास्ट, स्पीड से नोट करना। यहां तक नोट कर लिया बेटा?
नोट इट डाउन और नॉट? Yes, sir. Yes, Sir. sir. कोई प्रॉब्लम यहां तक? No, sir. No. ओके, चलो आगे चलते हैं। अब एक सीरीज दिखा रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में ना 2 लाइन पर ब्लैंक छोड़ देना, वहां और कुछ भी आएगा अभी। pH होल थ्राइस C प्लस, pH होल ट्वाइस C प्लस, pH CS2 प्लस, CS3 होल थ्राइस C प्लस। इस होल थ्राइस का मीनिंग समझ जाओगे ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। CS2 plus CH double bond CS2 एनाइल कार्बोकैटायन, CS3 whole twice CH 2 डिग्री और CS3 CS2 प्लस। अब देखो यहां समझना, कर दिया। अब स्टूडेंट बेटा इसके ऊपर बहुत डिबेट है गूगल पर, बहुत ज्यादा डिबेट है। ऐसा क्यों, समझना। कई लोग क्या बोलते हैं, यहां पर बेटर कॉन्जुगेशन है तो ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज होगी, और यहां कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगी। तो ये करेक्ट होना चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकली चेक किया साइंटिस्ट ने तो उन्होंने देखा ऑर्डर ये ना आकर ऑर्डर ये आता है। तो याद रखना, मैंने यहां पर पहले इसलिए लिखा है, मैं लिख ये रहा हूं, इसको मैं उठा के ब्रैकेट में डाल रहा हूं और यहां पर एक्सचेंज का साइन लगा रहा हूं ताकि गलती ना हो। याद रखना 3 डिग्री कार्बोकैटायन फिनाइल कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होगा। प्रैक्टिकली चेक किया हुआ डाटा है, तो यहां एमटीआर लिख लेना। इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये। इट इज क्लियर? हाँ सर। यस और नो बोला करो यार। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एक क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करो। CS2 plus CH double bond CS2, CS3C, CS3, CS3 plus CS3, CH plus CH2। अब देखो ये याद रखना 3 डिग्री फिनाइल से भी ज्यादा है, जहां बेटर कॉन्जुगेशन है, तो 3 डिग्री एलाइड से भी ज्यादा होगा। सुन लेना, 3 डिग्री एलाइड से ज्यादा, तो B इज ग्रेटर देन A और एलाइड किससे ज्यादा, 2 डिग्री से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 मेंस का क्वेश्चन है। जहां क्लियर ना हो रोक देना भाई, क्योंकि मैं बार बार नहीं पूछूंगा। मैक्सिमम स्टेबल कौन सा होगा? सी। Sir, C. देखो 1 फिनाइल, सुनना, फिनाइल कार्बोकैटायन तो बस फिनाइल 3 डिग्री से कम होता है, सिर्फ फिनाइल 3 डिग्री से कम होगा। इससे भी ज्यादा, इससे भी
क्या था सी, सी के बाद क्या होगा, ये 1 डिग्री और ये एलाइनिक कार्बोकैटायन सी देन ए देन, इट इज क्लियर। यस सर। सर ए और बी में क्या? बेटा ये तो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री तो इससे वैसा ही अनस्टेबल हो जाएगा, क्यों, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यस और नो। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचो दिमाग लगाओ, क्या ऑर्डर होगा एबीसी का। सोचो सोचो क्या आंसर होने वाला है। श्वेता, आयुष, दामिनी, हितिक, सर थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, देखते हैं। सर फर्स्ट वाला। अल्फा हाइड्रोजन उसमें ज्यादा है। चलो सारे कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आ रहे हैं वो लगाते हैं। डबल सिग्मा पॉजिटिव, डबल सिग्मा पॉजिटिव, दोनों में कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा। यस सर। हाँ सर। कॉन्जुगेशन 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 नहीं है, तो लीस्ट स्टेबल तो सी हो गया, लीस्ट सी। अब चेक करते हैं अल्फा हाइड्रोजन, कर लो चेक, कोई फर्क नहीं पड़ता अल्फा हाइड्रोजन का। यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 2 और 2 4, 2 और 1 3, 1 और 2 3। अब अल्फा पे तो पढ़ो ही मत, अल्फा का तो कॉन्सेप्ट मतलब ही नहीं है। आप आओ इंडक्टिव इफेक्ट पर, यहां देखो इस डायरेक्शन से प्लस आई और इस डायरेक्शन से प्लस आई, यस और नो। हाँ सर। हाँ सर। प्लस आई और प्लस आई, भाई ये तो लीस्ट हो गया, ये दोनों चेक करनी है। यहां से प्लस आई, यहां से प्लस आई, यहां से प्लस आई, यहां प्लस चार्ज ज्यादा डिक्रीज होगा इसकी कंपेयर। प्लस आई भी चेक करो, 2 साइड प्लस आई, 3 साइड प्लस आई, तो सी देन बी देन, किसी का आंसर आया क्या। क्वेश्चन क्लियर है, एक्सप्लेन करूं, बोलो। सर clear है। अल्फा हाइड्रोजन भी तो हो सकता है ना। देखो लगा लो, अल्फा हाइड्रोजन से टाइम ज्यादा लगेगा, क्यों, आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे, यहाँ 2 साइड प्लस आई, यहाँ 3 साइड प्लस आई, डायरेक्ट क्लियर हो रहा है, क्लियर। हाँ सर सर। और आप बोलो बोलो बेटा। सर वो प्लस आई और एक बार। देखो इस साइड से प्लस आई लगेगा, इस साइड से प्लस आई लगेगा, यस यहां से प्लस आई, यहां से प्लस आई, यहां से प्लस आई। प्लस आई का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, तो 3 साइड से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिक्रीज, 2 साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कम डिक्रीज, तो बी देन। यहां तक क्लियर है। हाँ सर। यस चलो थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दूं। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। चलो क्या यहां रेजोनेंस होगा। हाँ सर, डांसिंग रेजोनेंस। वेरी गुड यार, वेरी गुड। देखो बच्चा ये सोचता है सिंगल सिंगल लो कंजुगेशन,
ये जो साइक्लो प्रोपाइल रिंग है ना, समझना इसको, जो ये साइक्लो प्रोपाइल रिंग है, ये एक बेटर न्यूक्लियोफाइल होती है। बेटर क्या, बेस्ट लिख रहा हूं मैं यहां पर, सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या होता है, न्यूक्लियस लगेगा, न्यूक्लियस लगा। पॉजिटिव लेवल। पॉजिटिव नंबर। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो जो साइक्लोप्रोपाइल में रिंग दिख रही है ना आपको, ये बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है तो ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ। Yes. बोलो। Yes, sir. हाँ सर। भाई जब कोई अच्छा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं तब तो बोला करो, क्योंकि पता लगे समझ में आया नहीं आया। यहां से एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है। ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस होता है, जिसे बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। यहां डांसिंग रेजोनेंस होता है। तो डांसिंग रेजोनेंस की वजह से, सुनना बहुत बड़ी कहानी है, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से जो ये है ना, वो ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबल होता है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इससे भी ज्यादा है, दिखाऊंगा अभी। ड्यू टू द डांसिंग रेजोनेंस इट इज मोर स्टेबल देन फिनाइल कार्बोकैटायन। अगर अब मैं क्या करता हूं, सुनना, अब बच्चों इधर देखो, सबसे ज्यादा डांसिंग रेजोनेंस कहां होगा, ए में या सी में? फर्स्ट में। A. और इसके बाद आता है फिनाइल कार्बोकैटायन। तो जहां मैंने स्पेस छोड़ने को कहा था ना, वो इसी की वजह से छोड़ने को कहा था। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब कॉन्सेप्ट सारे बता चुका हूं। अब प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन लिखते जा रहा हूं, आंसर मैं पूछूंगा तब आपको देना है। आंसर नहीं बोलना जब तक ना पूछो। तीनों क्वेश्चन अटेंड करो। टाइम 3 मिनट है 3 क्वेश्चन के लिए। हाँ सर। सर फर्स्ट वाले में सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। मैं जब तक नहीं पूछूंगा आंसर तब तक नहीं देना किसी को। हाँ सर, हो गया। हो गया सर।
सो टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। देखो कई बच्चे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने में लग रहे होंगे, वो कॉन्सेप्ट भूल गए। नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। लोन पेयर नेगेटिव पॉजिटिव, मोर स्टेबल और नॉट? Yes. हाँ सर। Yes. Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस, Yes. लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस। यहां रेजोनेंस नहीं है तो बी लेस स्टेबल, यस और नो? सर उन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन देख लेंगे। बेटा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चुप 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 चुप। चलो चुप 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 चुप, चलो सबसे चुप चुप चुप, सबसे आगे बोलना, चलो सबसे आगे बोलो। हाँ भाई, हाँ हेलो करो, सारे के सारे हेलो करो जल्दी। चुप 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 चुप, बस 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 बस, ऐसे ले लो यार। अबे सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ये देखो बी में कोई रेजोनेंस हो गया क्या? यस और नो? नहीं सर। नहीं सर। बी इज स्टेबल। सर अब बी ये और देखो, डी में यहाँ रेजोनेंस, है। यहाँ रेजोनेंस, लेकिन ये कितने डिग्री है? हाँ सर। ये 3 डिग्री और ये 2 डिग्री। 2 अब ये डिग्री। बताओ 3 डिग्री से 3 डिग्री किससे ज्यादा स्टेबल होता है? 2 डिग्री। हाँ सर। 2 डिग्री से। किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर है वो यस बोले? Yes. यस यस सर। सर। सर अगर सब में अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो? क्यों? देखो यार एक चीज बताओ, जब कान को यूं पकड़ सकते हो तो यूं क्यों पकड़ रहे हो बेटा लाके? सबसे पहले सर रेजोनेंस बी और डी में में तो अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे ना। उसका मैं बताऊंगा, उसका कुछ नहीं देखना, उसका आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा बी और डी का। सर देखो सर एक हम मिनट, ए और डी। एक मिनट रुको। बी और डी दोनों में रेजोनेंस नहीं है, यस और नो? Yes sir. हाँ सर। ये मैंने आपको क्यों बताया है? अल्फा हाइड्रोजन क्यों लगा रहे हो? 2 डिग्री और 1 डिग्री कौन अच्छा ज्यादा अच्छा, हाँ स्टेबल होगा? सर। आपका 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा नहीं होगा? 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा। अल्फा, देखो अल्फा हाइड्रोजन तब तक याद रखना था जब तक 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री नहीं पता। अब आपको पता है ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री है, तो बी इज मोर स्टेबल देन डी। हमें तो एग्जाम में टाइम बचाना है ना, यस और नो? हाँ वहां क्यों काउंट करने बैठ रहे हो अल्फा हाइड्रोजन? अल्फा ही काउंट करोगे तो यहाँ 2 और यहाँ 4 और यहाँ कितने 2? बी इज ग्रेटर देन डी। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, रेजोनेंस रेजोनेंस, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल ए देन सी। क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? सर अब बोलो। सर ए और सी में देखेंगे तो ए में होता है लोन पेयर, फिर सिग्मा, फिर पॉजिटिव, फिर लोन पेयर। इधर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर सिग्मा और लोन पेयर कहां है? लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव ही तो है, और लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव है। क्या हुआ है देख? सर हाँ सर दोनों तरफ तो सिग्मा है, इसलिए वो। अरे भाई रेजोनेंस, अच्छा ये बोल रहे हो कि ये सिग्मा है ना सर? सर मतलब पहले वाले में दोनों तरफ सिग्मा है ना। तो इधर सिग्मा होने से क्या मतलब है? यहाँ पे तो पॉजिटिव होना चाहिए था ना। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है बेटा? लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, या पॉजिटिव थोड़ी है। सर ए और सी में अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखेंगे? यार तुम लोग ना सच में बेवकूफ लोग हो। अभी रोको, ऋतिक क्लियर है? हाँ सर। अब आते हैं बच्ची के क्वेश्चन पर। बेटा
ये बताओ मुझे सिंपल सी चीज, आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है वो बोर्ड का देना है या कंपटीशन का देना है, ये बताओ पहले तो। कंपटीशन का। कंपटीशन का। कंपटीशन का। आपको पता है रेजोनेंस रेजोनेंस कैंसिल हो गया, और ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो कौन सा स्टेबल होगा? 3 डिग्री। 3 डिग्री। अल्फा हाइड्रोजन क्यों लगा रहे हो? लगानी है अल्फा हाइड्रोजन। अगर आप पे बहुत टाइम होगा, पेपर में होगा नहीं ऐसा, तो लगा लेना 1 2 और 3, 1 2 और 3। यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 1 2 और 3 आ रहे हैं और 6 आ रहे हैं, तो ये मैक्सिमम स्टेबल होगा। ये मैंने 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री क्यों निकालना सिखाया? जिन बच्चों को ये नहीं पता होगा ना, वो कंपटीशन में अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और टाइम को किल करते हैं। अब इस पर ये क्वेश्चन क्लियर है ना? पक्का? हाँ हाँ सर। सर। चलो सर थर्ड इस वाले पर में ये तो सर मैं थर्ड वाले एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये तो मैं इंडक्टिव में एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये क्या होगा? एसपी। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाँ लेस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव मोर स्टेबल और हाई पे लेस स्टेबल। बताया या नहीं बताया? हाँ सर हाँ बताएं। सर। इसमें बता नहीं रहा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब सुनो, अब मैं इंडक्टिव इफेक्ट को भी उठा के ला रहा हूं, मैं मीसोमेरिक इफेक्ट को भी उठा के ला रहा हूं, और मैं कार्बोकैटायन को भी उठा के ला रहा हूं। सारे कॉन्सेप्ट मिक्स करने वाला हूं। देखते हैं कितने बच्चों के आंसर करेक्ट हैं। सुनना, मेरे पास 4 क्वेश्चन है और 20 मिनट है, कितना ही लग जाएगा टाइम? 4 आउट ऑफ 4 जिसके करेक्ट हो वो ऑनेस्टली बताना। 4 बेंजीन रिंग बना लो फटाफट, बनाते जाओ, बोर्ड पर से देख के आंसर मत देना। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड है बेंजीन रिंग है 4। देखते हैं दोनों क्वेश्चन। ए ट्राई करो, फिर बी ट्राई करना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ सर। हाँ सर। देखो, बोलना मत, यहां कोई इफेक्ट नहीं आएगा चार्ज पर। NO2 पर लगाते हैं, NO2 प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई। माइनस माइनस है। प्लस एम और माइनस एम, माइनस एम इफेक्ट। OH प्लस आई और माइनस आई, माइनस आई प्लस एम इफेक्ट। माइनस नॉन एम प्लस पेयर देगा प्लस प्लस एम। Cl माइनस आई और प्लस आई, माइनस है। माइनस आई। प्लस एम। और एम कौन सा है? प्लस एक्सेप्शन याद है या नहीं है यहाँ पर? यस यस सर। हाँ सर। यस सर। क्लोरीन एंड फ्लोरीन का। अब देखो, माइनस आई, इन दोनों का माइनस आई तो हटा दो, Cl का माइनस आई है, तो ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। अब पुल करेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा। यस और नो?
हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। माइनस आई है तो प्लस चार्ज को अपनी यहां से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज। ये माइनस आई और प्लस एम में हमेशा डोमिनेंट क्या होता है? एम होता है, मेसोमेरिक। हाइड्रोजन के केस को छोड़कर क्लोरीन और क्लोरीन को छोड़कर। अब देखो इसने यहां लोन पेयर दिए, ये प्लस एन माइनस आई से मतलब नहीं है, माइनस आई से मतलब नहीं है। अब ये बताओ NO2 और OH में से किसका प्लस एम ज्यादा होता है? ओ का। सॉरी ये माइनस एम है और ये प्लस एम है। अब इसका प्लस एम है तो ये डोनेट करेगा किसको? CH2 को। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज। यहां पर पुल करेगा, हाँ खींचेगा। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इंक्रीज। और माइनस आई और माइनस एम में से हमेशा जीतता कौन है? एक की बात नहीं कर रहा, अलग अलग कर रहा हूं। कौन जीतेगा? Minus M. माइनस एम चार्ज ज्यादा इंक्रीज होगा। किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब ये बताओ चार्ज डिक्रीज कहां हो रहा है? सी में। तो हाँ, सी मैक्सिमम स्टेबल। सी के बाद ये कांस्टेंट है ए। ए के बाद यहां कम इंक्रीज हुआ, यहां ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो ये डी होगा उसके बाद। ये ये लेस डी होगा। सी ए डी और बी। किस किस का आंसर ये आ गया था? हाँ सर। यस सर। श्योर है? यस सर। हाँ। चल आगे चलते हैं। मैंने जो क्वेश्चन नोट्स में दिया है वहां आंसर में मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। डी और ए, बी में डी पहले डी बाद में, तो याद रखना आप इस चीज को। ठीक है, याद रख लोगे ना? हाँ सर। हाँ सर, याद रख लोगे सारे के सारे? हाँ सर। हाँ। हाँ। इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये बताओ इसका कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस एम। प्लस एम। इसका प्लस एम। प्लस एन। प्लस ये सी का कौन सा होगा? प्लस एम। प्लस। प्लस अब इसको सबसे ज्यादा ये बताओ OH का प्लस एन ज्यादा या OCH3 का ज्यादा? OCH3 का ज्यादा होता है। इसका ज्यादा होता है बेटा। सीरीज लिखाई है मैंने। OH पहले आता है इससे। हाँ सर OH आता है। इसका ज्यादा है। मैंने वहां एक ये वाला एरो भी लगाया था OH और OR के लिए, और ऋतिक ने मेरे से पूछा था सर इसका मतलब क्या है? यस और नो याद हो तो किसी को? Yes. Sir. That's why we call teacher, क्योंकि हमें याद होता है कि क्लास में क्या हुआ है। OH का प्लस एन ज्यादा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिक्रीज होगा। डिक्रीज करेगा। इसके बाद यहां डिक्रीज होगा, और प्लस आई में सबसे कम डिक्रीज होगा, यहां कांस्टेंट। तो मैक्सिमम स्टेबल कौन सा है? ए, बी, सी और डी में से बताओ। A. देन B. B. बी। C. क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पर। ये बताओ कौन सा इफेक्ट माइनस एम? माइनस एम। माइनस एम। जहां भी माइनस, माइनस क्या पैरा पोजीशन पर कभी माइनस एम इफेक्ट लग सकता है? No, sir. बाकी के क्या कर रहे हैं? टाइम पास करके गांठ खाएंगे यार रात को सारे। तो नहीं, बाकी के या तो टाइम पास करने आते हैं यार, या पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। किसी दिन ऐसा ना हो मैं नंबर बाय नंबर क्वेश्चन पूछूं और फिर सबके घर पे पर्सनल कॉल करूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को।
अभी ये लग रहा होगा ना सर बहुत लीनिएंट है, बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं। चेन्नई ब्रांच में सबसे ज्यादा मैं ही फेमस था डांटने के लिए और गुस्से के लिए, क्योंकि प्यार ना प्यार तभी होता है बच्चे से भी जब बच्चा पढ़ने वाला हो। बाकी के आंसर क्यों नहीं देते? किस किस को ये याद है वो यस बोलना कि मीसोमेरिक इफेक्ट पैरा मेटा पर कभी नहीं लगता। यस हाँ सर सर याद है। सर हाँ। तो यहाँ तो मीसोमेरिक लगेगा नहीं, तो NO2 का कौन सा इफेक्ट लगाऊंगा मैं? माइनस माइनस आई इफेक्ट। अब ये बताओ माइनस सर हम डिस्टेंस और पैरा दोनों में से माइनस एम इफेक्ट हाई कहाँ होगा? ऑर्थो। ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, फिर भी किस पे ज्यादा होता है? ऑर्थो पर ज्यादा होता है। वेरी गुड बेटा। और कोई बताएगा मीसोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पर सिमिलर लगता है या नहीं लगता? क्या मीसोमेरिक इफेक्ट कभी डिस्टेंस पे डिपेंड करता था? नहीं सर, सर नहीं। नहीं सर, सर वहाँ हाइड्रोजन थिकनेस साइज बॉन्डिंग के होगा। हिसाब से वैसा होगा। अरे वाह, मैंने इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया क्या आपको? सर ज्यादा स्टेबल होगा। आयुष, यस सर। क्या मैंने इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया था? नो सर नो सर। नहीं बताया था। वहां OH होगा। देखो भाई क्वेश्चन समझना, मीसोमेरिक इफेक्ट यहां भी सिमिलर और यहां भी सिमिलर, दोनों में सिमिलर है। अब एक पॉइंट आराम से सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहां मीसोमेरिक नहीं लगा, मीसोमेरिक यहां भी लगा और मीसोमेरिक यहां भी लगा दिया। तो देखो ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा प्लस एम से, सॉरी, ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों पर माइनस एम है, ये भी लेगा, इसका माइनस आई है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा। बट सबसे कम इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है आपका? बी। यस और नो? कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई। हाँ सर। यस सर तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां इंक्रीज होगा, लेकिन सबसे कम इंक्रीज होगा, तो मैक्सिमम स्टेबल तो बी हो गया। बी होगा अब ना। ए और सी को देखते हैं, मीसोमेरिक को सिमिलर है, तो किसको कौन सा इफेक्ट चेक करने वाले हैं? माइनस आई इफेक्ट देखेंगे। माइनस आई, ये भी माइनस आई, डिस्टेंस यहाँ डिपेंडेंट। डिस्टेंस इतनी, यहाँ डिस्टेंस इतनी, तो कौन ज्यादा पुल करेगा? सी। ये वाला। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होगा। बी ए सी। एंड अगर सी। किसी को क्लियर ना हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, बोल दो बेटा। अभी डांट नहीं रहा, किसी को क्लियर ना हो तो मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा, बताओ। सर और एक बार बिल्कुल। देखो अगर पूछोगे ना, पूछने पे मैं कभी मना नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं पूछ रहा हूं तो मुझे भी आंसर चाहिए। दोबारा एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन। देखो चलो, देखो भाई, मेटा पर मीसोमेरिक इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, यहां ओनली माइनस आई, यहां माइनस एम भी है और माइनस आई भी, माइनस एम भी माइनस आई भी। यहां तक क्लियर है बेटा? जो दोबारा पूछ रहा है? यस सर ओके। माइनस एम है, ये भी इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, माइनस एम से ये भी पुल करेगा और माइनस आई से ये भी पुल करेगा। सबसे ज्यादा पुल कौन करेगा? सबसे ज्यादा पुल कौन करेगा? माइनस एम वाला और माइनस एम वाला।
उससे कम कौन करेगा? माइनस आई वाला। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन देगा, तो इंक्रीज तो हुआ, अनस्टेबल तो है, लेकिन इन दोनों से लीस्ट अनस्टेबल है, तो बी मैक्सिमम। अच्छा क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ओके। हाँ सर। देखो माइनस एम और माइनस एम डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, जितना ऑर्थो पर है उतना पैरा पर लगेगा। यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। पक्का ना? Yes, sir. अब ये बताओ, माइनस एम मैंने कैंसिल कर दिया, अब चेक करो माइनस आई को। तो देखो यहाँ डिस्टेंस ये है, यहाँ डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस कम तो आई ज्यादा, माइनस आई यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो सबसे ज्यादा चार्ज इंक्रीज होगा, और सबसे ज्यादा चार्ज इंक्रीज होगा तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल तो यहाँ भी होगा पर यहाँ कम होगा। बी देन ए देन सी। बेटा क्लियर है क्वेश्चन? अब हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, यही टारगेट था। ये क्वेश्चन मेंस में आया था, ये वाला भी क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है। ये देखो, मिथाइल ग्रुप मेसोमेरिक इफेक्ट तो शो करेगा नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। कौन सा? माइनस आई, यहां सॉरी प्लस आई, यहां ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो चार्ज कम होगा, यहां पर ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, यहां चार्ज ज्यादा कम होगा, यहां ये भी और ये भी, तो यहां चार्ज ज्यादा और ज्यादा कम होगा। यस और नो? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। आज का लेक्चर यहां तक ओवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं किसकी स्टडी करेंगे, याद नहीं आ रहा। फ्री रेडिकल। इसके नोट सेंड कर दिए थे क्या मैंने आपको? आयुष यस सर। नोट सेंड कर दिए इसके? हाँ सर क्लियर सर। देखो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे बेटा पढ़ लो, बाद में बहुत ही ज्यादा लॉस होने वाला है। आप ये सोचो ना कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी, सर ये पूरा पढ़ाएंगे। आपको पता है आप 12th क्लास में हो, यस और नो? Yes, sir. पता है ना? ये 11th का पोर्शन चल रहा है, अभी भी पता है नहीं पता? Yes. हाँ सर. अभी भी नहीं बोल रहे? तुम लोग नहीं सुधर सकते, इससे बात करना भी बेकार है, तुम लोगों से बात की जाए। श्वेता प्रधान दोबारा एंटर क्यों कर रहे हो भाई? सुनो मेरी बात, अपने माइंड में सेट करो मैं जो समझा रहा हूं। अभी जीओसी के 3 लेक्चर बचे हैं, सुनना। तुम लोगों की वजह से मुझे सुनना पड़ता है। आप लोग ये चाहते हो कि मैं आपके टॉपिक स्किप करूं, ये बताओ? नहीं सर। नहीं सर. नहीं, तुम लोगों की वजह से मुझे सुनना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे क्लास नहीं लगी उसके लिए मुझे सफर करना पड़ रहा है। अभी जीओसी 01 के 3 लेक्चर पढ़े हैं और जीओसी 02 के कम से कम 15 से 16 लेक्चर पढ़े हैं, और 7 लेक्चर अभी बचे हैं हाइड्रोकार्बन के। तो 15, 7, 22 और 3, 25, अराउंड 25 लेक्चर रिमेनिंग है क्लास 11th। अगर एक बार 11th प्रॉपर कवर हो गई ना बेटा, तो 12th की ऑर्गेनिक में मैं ज्यादा टाइम नहीं लगने दूंगा, क्योंकि मैं 11th में ही मैक्सिमम पोर्शन कवर करा दूंगा। 30% जो है, ओनली 70% ही बचेगा। तो ये बताओ सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे? फालतू यस मत बोलना, जो करे वही यस बोलना। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. चलो देखते हैं कितना सपोर्ट करोगे। कल के लेक्चर पर स्पीड और बढ़ेगी।
बाय, टेक केयर।